हर साल की तरह to discuss on GST 99C annual return and 9C. We have called requested and sincere with us. The special invitee, the tax committee of ICI 2021, special invitee to the committee for development of international trade, services and WTF ICI 2122, founder and president of Independent Tax Research and Analysis Association, registered and empaneled faculty with the Institute of Indirect Tax Committee of ICI, faculty with the NIRC of ICI. He has deliberated more than 250 seminars, workshop, training and camps on GST. The chief editor and mentor of the venture Tax Wizards, Tax Wizards India. He is a member of our institute since January 2016. He has also done graduation from University of Delhi. As a post-qualification course, he has also completed diploma on information system audit visa from our institute. He has also completed the masters in commerce and successfully cleared the GST certification course held by the institute. Having done his articleship from Thakur Vetnath Iyer and Company, one of the top firms in Delhi, he holds a diverse exposure to statutory audits, risk audits, and other management consulting. Currently, he is forming part of the faculty of the Institute for GST and Financial Management. He is also leading the team for seminars, workshops, and awareness camps on latest topics on pan-India basis. He is a regular partner at various respected forums and platforms, including the Institute of Chartered Accountants of India, ICWA, for its members and students. His faculty in the NIRC of ICI is also deliberated the seminars, workshop, and open discussions in various educational institutions all over northern India, including KMC College and Maharaja Agha Singh College of University of Delhi. His most prestigious deliberation includes session to the senior IAS officials and military officials at the Institute of Public Administration Training and Research. He is also deliberated to the senior banking officials at the National Institute of Banking Studies and Corporate Management. So, let us have Navya discuss with us 99C. हम जो 3-4 सेशंस 99C पे कराते हैं 25th को भी दोबारा एक रखा हुआ है. जनरली नव्या को पोस्ट 2 सेशंस बुलाते रहे हैं. इस बार पहली बार फर्स्ट सेशन स्टडी सर्कल में 99C का नव्या के साथ हुआ है. So thank you Navya for being with us and over to you. Once again, a very, very good evening. Good evening. It is indeed my pleasure to get this honored opportunity to interact with you on this need of the hour topic, that is GSTR 99C, and it remains indeed my privilege that you have given me the first opportunity to deliberate on this topic, because मैं ये मानता हूँ कि अब लोगों ने शायद सोचना शुरू कर दिया होगा एनुअल रिटर्न के बारे में. इस बार की एनुअल रिटर्न के बारे में सोचना शुरू कर दिया ऐसा अभी तो सोचना शुरू किया है, इसके बाद बनाना शुरू करेंगे. GSTR 99C कोई एग्जामिनेशन से कम नहीं है सर. लाइक एन एग्जामिनेशन जो पेपर से 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले सवाल आते हैं, वो 1 महीना पहले नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बनाना शुरू करते तब तक हमें एक्चुअली में रियलाइज ही नहीं होता कि एनुअल रिटर्न या 9C इस बार क्या कॉम्प्लिकेशन से बन रही है या क्या फिगर में कोरिलेशन में है या नहीं है. तो मैं आज के निर्धारित समय में जितना भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा, आई विल ट्राई टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर यू सो दैट वंस यू गो टुडे एंड स्टार्ट योर एनुअल रिटर्न सिंस मंडे नाउ, बिकॉज़ टुडे इज सैटरडे और कल आपका ऑफिस नहीं खुला है प्रेज्यूमिंग, तो मंडे जब आप एनुअल रिटर्न शुरू करें तो यू मस्ट बी इन अ गुड कंफर्ट टू स्टार्ट द एनुअल रिटर्न.
यहाँ पर कितने लोगों ने एनुअल रिटर्न आज तक कभी बनाई ही नहीं? इट इज द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस। टेल मी, कितने लोगों ने पहले बनाई हुई? एक्चुअली आधे लोग तो हाथ खड़ा करने से इसलिए भी डरते हैं कि उनसे कोई सवाल ना पूछे। आज आप जितने लोग भी हाथ खड़ा करेंगे मैं कोई आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न। मैं चाहूंगा कि मैं ही डिलीवर कर पाऊँ जितना कुछ। By the time I try to connect the screen, because you know my habit, I do not prepare any PPT. So I have a habit of writing. मैं आप सबसे भी चाहूंगा आपके पास नोटपैड पेन होगा या कुछ राइटिंग के लिए है ये सो क्या वो तो ले आना एक्स्ट्रा है। मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट दे पाऊँ आपको, बट उसके लिए मुझे आपसे एक चीज की हेल्प चाहिए कि आप लोग जितना हो सके आगे आके बैठ जाएं प्लीज, क्योंकि क्या है सो दैट मैं जब नीचे उतरूंगा तो आई विल बी यूजिंग नो माइक, सो इट विल बी पुटिंग लेस force on my vocals since I have been speaking on this topic since last week. चलो mic है. And next week also the session is lined up for this. नॉर्मली होता था जब सेकंड थर्ड सेशन नव्या के साथ जैसे 99C पे बड़ी तक नई चीज निकल के आती थी। फर्स्ट सेशन में सेकंड सेशन से निकल के थर्ड सेशन में कुछ और नया आ गया, मतलब मैंने कहा चलो सबसे पहले नव्या से लेते हैं ताकि सेकंड थर्ड सेशन में नई चीज ना नजर आए और क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो माइक ये वाला ऑन करना पड़ेगा, ऑन नहीं है कर देंगे सर आगे। मैंने आपको बिल्कुल क्लासरूम सेशन वाला ही कर दिया सर, तो पुराने दिन याद कर लेते हैं थोड़ा सा जब हम सीए की तैयारी शुरू करते थे। ऑडिबल है सबको? ठीक है सर, आप सबने एनुअल रिटर्न आइडियली पिछले 7 साल से देख रहे होंगे जब बना रहे थे, और हर साल कोई ना कोई नई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है एनुअल। ये माइक ऑन करना। तो आप 7 साल से एनुअल रिटर्न देख रहे हैं, कोई ना कोई नई कॉम्प्लिकेशन एनुअल रिटर्न में हमेशा होती है, और इस साल की कॉम्प्लिकेशन ये वाली है कि आपकी इस साल इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड एस्पेक्ट्स में ज्यादा दिक्कत। इनपुट टैक्स क्रेडिट में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे। जीएसटीआर 9 दिख रहे हैं सर सबको? आए नहीं सर। एनुअल रिटर्न हमारी 2 हिस्सों में बटी होती है, दैट इज वन इज रिगार्डिंग द सेल्स एंड वन इज रिगार्डिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट में होती है, जो सेल्स होती हैं सेल्स, और एक होता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस और नो? तो ये जो सेल और इनपुट टैक्स क्रेडिट है, दोनों में क्या फंडामेंटल फर्क है जरा समझ लीजिए। एनुअल रिटर्न की प्रिपरेशन के हिसाब से आप लोग सोचते हैं एनुअल रिटर्न एक कंप्लायंस है, एक रिटर्न है, एक कंपाइलेशन है, या और कुछ है? मुझे बताइए। कंपाइलेशन रिकंसिलिएशन तो 9C है, एक सेल्फ असेसमेंट है जो होल्ड फर्म या कंपनी और उसका पूरा कंप्लायंस ही है, साथ में एक एरर रेक्टिफिकेशन भी है कि विद इन ईयर हमने हमारा कुछ छूट गया है या कहीं पे मिस रिप्रेजेंटेशन है तो उसको अफेक्ट है। ठीक है, तो आपने इसको ये समझा कि इसमें कोई चीज ठीक करने का, ये आपको दूसरा देना। कंपाइलेशन भी है, कंप्लायंस भी है, और साथ में वो एडिशन है कि अगर कुछ प्रेजेंटेशन में कोई एरर हो गया तो रेक्टिफाई। तो हम ये कह सकते हैं कि एनुअल रिटर्न, किसी ने बोला रिकंसिलिएशन है, किसी ने कहा कि सिर्फ हम उसमें असेसमेंट कर रहे हैं, और किसी ने कहा कि हम उसमें रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। समअप कर देते हैं सारा।
सर यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना होगा, सेल्स होती हैं, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ दैट इज प्योरली कंसर्न रिगार्डिंग वेदर द सेल्स रन ऑन एक्चुअल बेसिस और डिक्लेयर्ड बेसिस। दोनों में शब्दों में फर्क है, एक्चुअल बेसिस सेल्स या डिक्लेयर्ड या एक्चुअल, डिक्लेयर्ड या एक्चुअल। एक्चुअल बेसिस एक्चुअल का क्या मतलब? जो है जो एक्चुअल मतलब एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेयर्ड मतलब सर होनी हाइपोथेटिकल चाहिए नहीं, मैं कह रहा हूँ एनुअल रिटर्न एक्चुअल्स पे बनती है, डिक्लेयर्ड नहीं डिक्लेयर बैलेंस शीट में पहले ही बना दी तो उसी बेस पे। सर एनुअल रिटर्न हमेशा बनती है एक्चुअल बेसिस पे रिगार्डिंग सेल्स। व्हाई? बिकॉज वहां शब्द लिखा है मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मेड MEADE, मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है? जो आपने सप्लाई एक्चुअल में करी है, ना कि जो आपने GSTR 1 और 3B में डिक्लेयर करी। सो 1 और 3B might be wrong, but the annual return requires you to report what you have actually made. Let's say आपने GSTR 1 में 12 लाख रुपए दिखा दी और दिखानी थी 15 लाख रुपए, तो आपको एनुअल रिटर्न में 15 दिखानी है, 12 नहीं दिखानी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ फंडामेंटल बात कर रहा हूं पहले आपसे। ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड क्या किया जाता है बताइए? क्या ये अवेल्ड पे चलता है या एक्चुअल्स पे चलता है? अवेल्ड मतलब एडिशन कर नहीं सकते हैं। अवेल्ड पे चलता है या एक्चुअल्स पे चलता है? एक टेबल में 40 में तो हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं जो भी CGST। सर मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इनपुट की ही बात कर रहा हूँ। क्या बताओ? कि इनपुट में हम डिफाइन करते हैं कि इनपुट गुड्स का इतना है, सर्विसेज का इतना है, या कैपिटल गुड्स का है, तो एक्चुअल बेसिस पे वो डिस्क्लोजर होगा, क्योंकि बाद में जाकर रिकंसाइल होगा IC के साथ। ओके। और सेकेंडली अगर हम टेबल 8 में जाते हैं तो वहाँ पे फिर GSTR 2B की जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है, तो सर मैं फंडामेंटल्स की बात सर अवेल्ड पे मैं तो या एडिशन कर ही नहीं सकते मैं। सर मैंने अभी टेबल्स की बात ही नहीं की। यहाँ पे दो, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों है। नहीं है सर। एक्चुअल नहीं हो सकती सर, जो छूट गया तो ले नहीं सकते इसमें। सर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो चलता है अवेल्ड पे, यानी कि एनुअल रिटर्न में ना ही आप ITC को बढ़ा सकते हैं ना ही आप ITC को घटा सकते हैं। फंडामेंटल, नाइदर आप रिवर्सल बढ़ा सकते हैं ना ही आप रिवर्सल भी घटा सकते हैं। में जो आपने किया So whatever you have discussed and disclosed in the 3B of the financial year, you need to divide that figure only in the annual return. आपकी बुक्स में 12 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है, लेकिन आपने ले लिया है 15 लाख रुपए का, तो भी आपको 15 लाख का ही डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आपकी बुक्स में बनता है 15 लाख रुपए, लेकिन आपने लिया 12 लाख है, तो आपको 12 लाख का डिस्क्लोजर। So whatever you have mentioned in 3B, that requires the disclosure in the annual return. Clear? आगे आगे बढ़ेंगे और समझ आता जाएगा। आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे आपको और डिस्क्लोजर क्लियर होता जाएगा। सर एक सेल्स में एक छोटा सा पॉइंट था सर क्वेश्चन अभी मत पूछो सर, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया सर? मैं कुछ एनुअल रिटर्न के टेबल्स लिख रहा हूँ आपके सामने। टेबल 1, 2, 3 ये मेरे इंट्रो टेबल हैं। टेबल 1, 2 और 3 मेरे इंट्रोडक्शन टेबल्स हैं। इंट्रोडक्शन माने GST नंबर क्या है, किस साल की एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, क्या लीगल नेम ट्रेड नेम है, ठीक है? ये मेरे एनुअल रिटर्न के इंट्रो टेबल। मैं ये टेबल वाली बात जो लिख रहा हूं इसमें मैं ये भी लिखूंगा कि इस साल क्या चेंज हुआ, मैं ये भी लिखूंगा कि इस साल क्या मैंडेटरी था और क्या ऑप्शनल है। तो टेबल 1, 2, 3 से कोई डाउट किसी का?
टेबल 4 और 5 आपसे बात करता है सेल्स की। टेबल 4 और 5 आपसे सेल्स की बात करता है, यस और नो? यहाँ पर सेल्स का डिस्क्लोजर होता है और अभी हमने क्या पढ़ा, जो सेल्स होती है वो जाती कैसे हैं, मैं ये भी लिख रहा हूं एक्चुअल्स, यानी कि ये चलती हैं मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। जीएसटीआर 9 के अंदर अगर कोई भी टेबल में ये फिगर आ रही है 4 या 5 में, ये ऑटो पॉपुलेट होके आती है और ये एडिटेबल होती है सर। और इसका सोर्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए आपने मैंने क्या लिखा है, GSTR 1 इज द सोर्स। यानी कि अगर आपके क्लाइंट ने GSTR 1 में कोई भी गलती कर रखी होगी तो क्या वो एनुअल रिटर्न में गलती रिफ्लेक्ट कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी, यानी कि वो एनुअल रिटर्न में फिगर गलत आ रही है। ये एडिटेबल है, यानी कि आप इसको मेड पे ले जाएंगे, एक्चुअल्स पे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक 1 लाइन में पूरे एनुअल रिटर्न की बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर एक नया टेबल ऐड हुआ है इस साल 4G1, जो कि बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। 4G1 पानी लाता है, 4G1 का मतलब क्या है, बोतल पानी रख दो, ये नहीं चाहिए यहाँ पे। 4G1 कहता है जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करी है, जिस पे टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 95 में जमा करना है, वो यहां डिस्क्लोज की जाएगी। तो ये नया सेल ऐड हुआ है 4G1, जहां जहां नया ऐड हुआ है मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, सो दैट एट द एंड ये पूरे टेबल पूरा जो आपके इस पे बन जाएगा, तो आप इसको फोटो भी खींच सकते हैं जब आपको लास्ट में लगे, सो दैट यू कैन समराइज। नेक्स्ट इज टेबल 6, 7, 8। टेबल 6, 7, 8 किसके लिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, डिक्लेयर्ड बेसिस पे, यानी कि अवेल्ड पे। अवेल्ड पे चलता है, इसमें भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आती है और ये एडिटेबल नहीं होती सर। मैंने आपसे बोला था इसमें ऑटो पॉपुलेट फिगर आती है लेकिन एडिटेबल नहीं होती। 6A के अंदर वही फिगर आ रही होती है जो 3B से होती है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका सोर्स क्या होता है? 3B। GSTR 3B इसका सोर्स है, यानी कि अगर किसी आपके क्लाइंट ने 3B में आई इनपुट लेने में गलती कर दी है, दैट मींस वो 6, 7, 8 में भी गलत आ रहा होगा। Now 6, 7, 8 not only covers input tax credit but also cover 2 more aspects. क्या? One is the reversal, one is the 2A 2B RICO. तो यानी कि ये रिवर्सल भी कवर करता है, 2A 2B भी रिकवर करता है और कवर करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड एस्पेक्ट भी कवर करता है। ये तीन चीजें कवर करते हैं, तीन टेबल, ठीक है। साथ ही में मैंने ये लिखा कि एडिटेबल नहीं है, लेकिन एडिटेबल के साथ एक चीज एडिटेबल होती है इसमें और वो होती है इंटरनल ब्रेकअप। क्योंकि सर ने बोला था पीछे अभी थोड़ी देर पहले, आप इंटरनल ब्रेकअप को करेक्ट कर सकते हो। आपने जो बोला, आपने 12 लाख रुपए ले लिया, 12 लाख रुपए में जो क्रेडिट था वो आपने गलती से पूरा को पूरा रिवर्स चार्ज में डाल दिया था, 3B में डालना था फॉरवर्ड चार्ज। ये सब आप ठीक कर सकते हो, लेकिन 12 लाख को बढ़ा नहीं सकते, 12 लाख को घटा नहीं सकते। So the gross figure remains the same. However, the internal breakup can be handled within GSTR 9. So internal figures has to be on actual. Yes. Yes.
ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब इसमें लिख रहा हूं कुछ नई चीजें, अभी लिख रहा हूं खाली 6A1 नाम का एक सेल ऐड हुआ है। 6A1 नाम का एक सेल ऐड हुआ है जो कि कवर करता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी। ऐसे ही एक सेल और ऐड हुआ है इसमें 8H1 जो कि कवर करता है सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने आईटीसी इंपोर्ट्स का लिया, सिर्फ इंपोर्ट का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, जो कि पे इस साल हो गया कस्टम्स के पोर्ट पे, लेकिन आपने लिया अगले साल। ठीक है जी। ऐसे ही इसमें इस साल ये चेंज हुआ है, खाली इसमें स्टार नहीं लगाऊंगे, खाली फिगर टेबल की रिप्रेजेंटेशन चेंज हुई है, दैट इज 6H, इसका नाम चेंज हो गया। 6H का नेम चेंज हो गया है, 6H का नेम चेंज हो गया है, 6H का नाम कर दिया गया है रिक्लेम्ड। 6H के नाम के आगे लिख दिया गया है रिक्लेम्ड। सो ये अब चेंज कर दिया गया। यहां तक समझ आ रहा है? कोई डाउट? अभी मैंने कोई भी टेबल की डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बात नहीं करी। नेक्स्ट आपका टेबल होता है टेबल 9। टेबल 9 किसकी बात करता है? 9 बात करता है टैक्स पेबल वर्सेस पेड की। टैक्स पेबल वर्सेस पेड, इस पेबल वर्सेस पेड के अंदर, पेबल वर्सेस पेड में, पेबल वर्सेस पेड में आपकी फिगर अगेन ऑटो पॉपुलेट आती है। ठीक है, नाउ दिस इज द ओनली टेबल विच इज हाइब्रिड, विच इज एडिटेबल एज वेल एज नॉट एडिटेबल, विच रन्स ऑन एक्चुअल एज वेल एज डिक्लेयर्ड। देखिए इसमें दो कॉलम है, टेबल पेड। सर ये तो एडिटेबल होता है, ये एडिटेबल नहीं होता। पेबल एडिटेबल होता है, पेड एडिटेबल नहीं होता। Now both the table has the source as GSTR 3B, यानी कि अगर 3B में कोई भी गलती हुई होगी तो GSTR 9 के टेबल 9 में भी गलती आ रही है। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट? इसमें भी कुछ नया ऐड हुआ है। इसमें एक नया कॉलम ऐड हुआ है जो कि बात करता है डिफरेंस ऑफ टैक्स पेबल माइनस टैक्स पेड। इस बार पहली बार 9 के टेबल नंबर 9 में एक कॉलम ऐड कर दिया गया है सबसे लास्ट में, टैक्स पेबल माइनस टैक्स पेड। ये ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर आएगी, यानी कि आज ऑफिसर को रेडीली एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने टैक्स पेबल दिखाया 1000 रुपए और टैक्स पेड दिखाया 900 रुपए, तो 100 रुपए की लाइबिलिटी वो DRC 03 से चेक करेगा। इनफैक्ट ये आपके लिए ग्राउंड भी बनेगा अगर उल्टा केस हुआ जहां पे आपने लाइबिलिटी को कर दिया 900 रुपए लेकिन पेड था 1000 रुपए, तो वहां -100 रुपए दिखेगा। इन दिस केस it will help and support you in future that excess tax was paid in 24-25। ठीक है, पहले कॉलम नहीं था तो अब रेडीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल 10, 11, 12, 13, 14। ये टेबल क्या कहते हैं? 10, 11, 12, 13, 14 जो करंट ईयर की ट्रांजैक्शन आपने सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में की है।
सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर अप टू कब तक 30 नवंबर 25 फॉर टैक्स पीरियड अक्टूबर 25 की रिटर्न जो आपने होल्ड करी हो 30 नवंबर तक। ठीक है, यहां तक तो आप लोग रेडी हैं मेरे साथ? यहां तक कोई डाउट? इसमें भी टेबल नंबर 14 के अंदर एक नई चीज ऐड हुई, वो था सेम यही वाला टेबल, टैक्स पेबल वर्सेस टैक्स पेड का डिफरेंस टेबल नंबर 14 में भी डल गया। ठीक है जी, टेबल नंबर 15, 16, 17, 18, 19, जिसमें से 15 और 16 अभी भी ऑप्शनल है, इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। 15 डिमांड और रिफंड्स के केस है, 15-16 टेबल, उसके बात करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शनल है। टेबल नंबर 17 बात करता है आपसे सर HSN की, जो आपने आउटवर्ड में सेल किए हो। HSN आउटवर्ड ये आज भी कंपलसरी है, पिछले साल भी कंपलसरी है, लेकिन इसमें भी कुछ नया है इस बार। इसमें क्या नया है, ये भी ऑटो पॉपुलेट होके आएगा इस बार GSTR 1 से। नहीं आ रहा तो अभी तो नहीं आ जाएगा सर, अब रिफ्रेश करो आ रहा है, अब डाउनलोड करो आ रहा है। ऊपर डाउनलोडेबल एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें नीचे वाले में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं किया हुआ है। डाउनलोड हो रहा है ना, डाउनलोड का ऑप्शन है, उसमें दिख रहा है ना? सर पहले भी होता था। सर आ रहे हैं उसमें? किया है। नहीं नहीं, ऊपर नहीं कह रहा मैं, टेबल के अंदर खुद आ रहा होगा, नहीं आ रहा। आ जाएगा, रिफ्रेश करोगे आ जाएगा, आ जाएगा एक आध दिन में, कोई बात नहीं। ठीक है, 18 नंबर टेबल इनवर्ट सप्लाई का HSN है, ये ऑप्शनल है तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। इनवर्ट का भी ऑप्शनल है। टेबल 19 जो कि लेट फी की बात करता है, ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है, कीबोर्ड के लिए किसी भी टर्नओवर के लिए ऑप्शन है सर। सारा ऑप्शन। लेट फी जो ऑटो पॉपुलेट है उसके बारे में कुछ लिखना चाहूंगा रिगार्डिंग लेट फी। एक FAQ आ चुका है GST पोर्टल के ऊपर जो लेट फी के बारे में बहुत क्लैरिटी से एक बात कहता है। क्या सर, अगर आपकी 31 दिसंबर 2025 की लास्ट डेट है एनुअल रिटर्न भरने की, है ना, यही है। अब लेट से आप अपनी पांच जनवरी 2026 को GSTR 9 भरते हो और 8 जनवरी 2026 को 9C भरते हो। ये कहता है जी 5 दिन की तो लेट फी लगेगी 9 की और 3 दिन की लगेगी 9 से, यानी कि दोनों ओवरलैप होके नहीं लगेंगे। ये भी क्लैरिटी इस बार दे देगा। दोबारा बताना, ये 5 दिन सर 5 दिन की तो 9 की लेट फी लगेगी और 3 दिन की 9C की लेट फी लगेगी। हमने रिटर्न भरी है 5 जनवरी को आपने भरी 9, 8 को भरी 9C। ऑफिसर आपको क्वेश्चन करता था ना कि मैं 25,000 की लेट फी लगाया था 9C पे, क्योंकि उसकी 9C की लेट फी कहीं लिखी ही नहीं है। भाई साहब 9 9C जहां भी एप्लीकेबल है, 9 9C एक ही पार्ट है, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ तक 9 की अगर 9C 8 तारीख को भर रहे हैं और 5 तारीख को हमने 9 भर दिया, तो 5 तारीख को कैसे पता 3 दिन लेट है वो? नहीं, 9C 9C से बोलोगे बोलोगे तो 9C में भी लेट फी का टेबल है, वो अपनी वहाँ फीस पे- लेगा यहाँ से लेकर। ठीक है, मतलब वो यहाँ से नहीं लेने लग जाएगा। आर यू रेडी? यहाँ तक रेडी? मीन्स उसमें कोई नई टेबल ऐड हुई, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 9। 9 डेट ऑफ फाइलिंग के नीचे फाइलिंग डेट तो आती है रिटर्न की, तो आप रिटर्न फाइल करते हैं नहीं, वो 9 से पिक करेगी उसको। सर, वो रिलेटेड रिटर्न है। ठीक है, कुछ हम आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ। टेबल 4 + 5 + 10 - 11 इज इक्वल टू 9 + 14।
यानी कि सेल जो 4, 5, 10 माइनस 11 में दिखाई होगी उसका टैक्स 9 और 14 में टोटल करके आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, लिख लिया? क्या इसमें कुछ आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, so that once I erase it you are able to recall it if you have noted. You have 30 seconds अगर आपको कुछ नोट करना है। और टू क्लिक फोटो। Yes, or even you can click the photo. और जिसकी अच्छी फोटो आ जाए मेरे को भेज देना। ट्राई करना। नहीं, मैं फिर सबको भेज दूंगा ना। हाँ सब इजी रास्ता लिखाते हैं। शानदार। कर लिया सर? चलिए, मुझे लग रहा है कि ये हमने परमानेंट मार्कर दे दिया। परमानेंट तो नहीं है। नहीं, वो डिटर्जेंट से मिट जाता है। उसका वो मंगा लें सॉल्वेंट जो लिखे सही साफ करने के लिए। तो वो नया जल्दी मिट रहा पूरा डाल कर। मुझे टोटल 2 बार और साफ करना है इसके बाद। चलो कोई बात नहीं, ये वाला यूज ही नहीं करेंगे ना। हाँ ठीक है, आपको सारा पुराना वाला मत नोट कर लेना फिर से। अब मुझे आपसे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्स्ट, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट इस बार हाईली क्रूशल है। मैं एक बार नहीं 2 बार डिस्कशन करूंगा उस पर, सो दैट यू आर वेल कन्वर्स्ड, ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत आए आपको। सो एनुअल रिटर्न सर, आपको याद होगा अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट लेट्स अज्यूम 100 रुपया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका क्रेडिट 100 रुपया है, आपका 2A में कितना होना चाहिए सर? आइडियली 2A में भी 100 रुपये होना चाहिए। यस और नो? सर आपका 3B में भी कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अब पिछले साल का 20 रुपए का कोई क्रेडिट था जो आपने इस साल में लिया है, पिछले साल का 20 रुपीज आपने इस फाइनेंशियल ईयर में भी लिए, वो कहां दिख रहा होगा? 3B में। वो ये हटके 120 दिखाया होगा। यस और नो? एनुअल रिटर्न के अंदर मैंने आपसे बोला 6A ऑटो पॉपुलेट होता है, ये 3B से ऑटो पॉपुलेट होता है, 120 आएगा। इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। यस और नो? यहां पे आ रहा होगा 120, ये ऑटो पॉपुलेटेड है और ये एडिटेबल नहीं है। ऐसे ही आपका 8A के अंदर जो कि 2A या 2B से फिगर लेता है, वहां कितना दिख रहा होगा? 100। यहां कितना दिख रहा है? अब नया एक टेबल ऐड किया गया आपके लिए 6A1, जो कि मैंने लिख पाया अभी तक। 6A2 ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा है, फिर 6B आ रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा फॉर्म के बारे में याद हो तो जो फिगर आप 6B में लिखेंगे वो उठ के ऑटोमेटिकली 8B में चली जाएगी, और ये फिगर भी ऑटो पॉपुलेट होके एडिटेबल नहीं हो। यस, 8A वाली, हाँ 8A और 8B भी 8B भी, यस। थोड़ा याद है?
यहाँ तक यहाँ में कंफ्यूजन है सर? नहीं यार ठीक है सर, मैंने बोला आपसे पिछले साल का क्रेडिट आपने जो इस फाइनेंशियल ईयर में लिया है उसके लिए एक पर्टिकुलर नया सेल ऐड किया गया है 6A1। यहां पर आपको 20 रुपए लिखना है, ठीक है? लास्ट ईयर से ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट आ रहा है। हाँ। वो वाला जो रेटिंग लिखा है क्रेडिट लेजर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इन करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड डेट, ठीक है? अगर 23 से तो GSTR 9 में डिक्लेयर किया हुआ वो यहाँ पे है। सर मैं ये नहीं कह सकता जो वहां पे आ रहा हो, क्योंकि हो सकता है 8C में कुछ और आ रहा हो, 13 में कुछ और आ रहा हो, लास्ट ईयर 9 की बात कर रहा हूँ। 23 से 9 में जो सब्सिक्वेंट में गया है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल हो सकता है वहां गलत हो गया हो सर। तो यहाँ पे हम उसको एक्चुअल आपने 3B के अंदर लेट से पिछले साल का 30 रुपए ले लिया। बात नहीं कर रहा सर, GSTR 9 की बात कर रहा हूँ। सर 9 में गलत भर दिया अरे वो। पिछले साल 9 में ही गलत भर दिया तो क्या करोगे? तो फिर वो तो फ्रीज हो गया फिर उसमें। अरे फिर सर उससे ऊपर लेना देना ही है ना। सर एक बात बताओ, अगर उसमें आपने 50 रुपए डाल दिया, हम्म, उस टाइम नहीं दिमाग चल रहा था, हम्म। लेकिन लिया इस साल 20 ही है, 50 डालोगे क्या यहाँ पे? जब आपकी 3B ही कह रही है कि 20 रुपए है, तो वही लिखिए। 50 डाल के क्या कर लूंगा सर? अच्छा पॉइंट है। You need to check and verify whatever is actually the correct. You need to, sir, आंख मीच के अगर नहीं कोई डालना गलती हो रही है तो उसको कंटिन्यू थोड़ा करता रहूंगा। यहाँ पर आप दिखाइए ना फिर 20 रुपए, और जैसे ही 20 रुपए दिखाएंगे 100 रुपए आ जाएगा। So ये 20 includes your all other ITC import, RCM, everything, or just all other ITC which Ma'am, pertains this to is- previous year? This is all other items. All other. RCMs, forward charge, and any imports, anything. बस इसमें एक ही क्रेडिट इंक्लूडिंग नहीं है, वो भी अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं। दैट इज रूल 37 और 37A। ये 6A1 में इंक्लूड नहीं, यानी कि 180 डेज में जो आप क्रेडिट का रिवर्सल करते हैं, जो आप टैक्स पे 180 दिन में नहीं करते, वो यहाँ इंक्लूडेड नहीं। ठीक है जी, डन। ये 100 रुपए यहाँ आते ही आप 6B में जैसे ही 100 रुपए लिखेंगे, 100 रुपए यहाँ फ्लो कर जाएगा और डिफरेंस हो जाएगा 0। सर एक केस में डिफरेंस आ रहा है। किस केस में? आप अपना केस अभी मत बताओ, पहले मुझे बोलने दो। आई रेस्ट ऑल माय केसेस, तब आप दे देना। मैं प्रोग्रेसिवली ग्रो करूंगा ना आगे से। ठीक है, यहाँ तक यस सर, मैं डालूं इसको? यस सर। यहाँ सर पे ये नोट- 6A2 और 6B सेम रहेंगे, ऑटो पॉपुलेटेड है दोनों। कौन सा दो ऑटो पॉपुलेट? 6A2 और 6B। 6B तो मैंने लिखा है सर, कहाँ लिखा है ऑटो पॉपुलेट? जो ऑटो पॉपुलेट है उसके ब्रैकेट में ऑटो पॉपुलेट लिख तो रहा हूँ मैं एक। भाई ये तो कैलकुलेटेड टेबल है, ये लिखा है यहाँ मैंने लिखा है ऑटो पॉपुलेट सर, ये तो आप लिखते हो इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स में डिवाइड करके। अच्छा वो जो बाइफर्केशन सर्विसेज का क्या 6B का बाइफर्केशन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सर? यस सर, डन? यस सर। कोई डाउट? नो सर, नोट कर लिया सर? यस सर। आगे नोट करिए। आपको नया 3B का फॉर्मेट याद है? याद तो नहीं होगा। थोड़ा सा आपको मैं जैसे रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं। न्यू GSTR 3B का फॉर्मेट क्या कहता है जी? लेट से आपके 2B के अंदर आ रहा है 150 रुपए, 2B के अंदर 150 रुपए आ रहा है, लेकिन जिस महीने आप रिटर्न भर रहे थे दैट इज जनवरी 2025, ये जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी 25 में आपका जब 2B में 150 आ रहा था तो आपने देखा है 150 रुपए में से 50 रुपए तो वो क्रेडिट है जी जो इस महीने रिसीव ही नहीं हुआ है, ये आपको होल्ड करना है, ये आप लोगे अगले महीने। ऐसा होता है, दिस इज अ टेम्पररी रिवर्सल। रिटर्न के अंदर अब क्या फॉर्मेट आ गया?
वो कहते हैं कि 3B में ग्रॉस क्रेडिट डालो, उसमें टेम्पररी रिवर्सल करो, उसके बाद नेट फिगर लो। ये याद है? याद है किसको? तो हाथ खड़ा करो। बाकी लोग ये रिटर्न का फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे क्या? नहीं करे तो कोई बात नहीं, उनके में दिक्कत नहीं आएगी सर। जो कर रहे हैं उनके में ही चैलेंज है। वो कहता है कि 2B में जो फिगर आ रही होगी वो यहां लिखनी है सीधी सीधी, जो कि खुद ऑटो पॉपुलेट भी होती है। इसमें से ये 50 रुपए जो आपको अगले महीने लेना है, क्योंकि ये तो मिला नहीं है, ये माइनस करो, ये नेट आईटीसी आपका 100 रुपए आ जाएगा। अब नेक्स्ट महीने क्या होगा, जो कि फरवरी का महीना है, उसमें 2B में आ रहा होगा लेट से अगेन 100 रुपए। अब आप यहाँ 3B में ये फ्लो करा के 100 रुपए लिखोगे, लेकिन आपने कहा नहीं भाई ये 50 रुपए तो छूट गया था, ये हटा के आप यहाँ पे 150 लिखो, क्योंकि 50 रुपए तो आपको रीअवेल करना है। टेम्पररी रिवर्सल इस महीने में कोई है नहीं। कितना हो गया? 150। नेट आईटीसी अगर देखा जाए पूरे साल का तो 100 प्लस 150 कितना होता है? 2B को भी टोटल किया जाएगा 250। मैच कर गया पूरे साल का। लेकिन जब आप एनुअल रिटर्न भरेंगे और 6A में देखेंगे तो 6A में फिगर आती है भाई साहब ये वाली प्लस ये वाली, यानी कि 150। So your annual return takes gross figure, not the net figure. And this is not editable also. यहां तक आप मेरे साथ हैं? बहुत स्लो चलाओ इसमें सर। ये 300 रुपए में क्या ये 50 रुपए डुप्लीकेट आ रहा है? ये सुन, ये 50 रुपए 2 बार आ रहा है सर। So this 50 rupees is twice. Yes or no? Yes, yes. It has a duplicate effect. This 50 rupees has a duplicate effect in the gross figures. Now this time annual return has the format of 6A1, 6A2, 6B. ये 6B उठ के आ जाती है कहां पे? 8B में, 8A। इस बार एक टेबल का नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है 6H, और इन्हीं के बीच में कहीं एक टेबल आता है 7H जो कि रिवर्सल की बात करता है। सो इस बार एनुअल रिटर्न में ये बड़ा क्लियर कर दिया गया कि ये जो डुप्लीकेट इफेक्ट है ये पिछले साल का आईटीसी तो है नहीं, 0। यहां फिर 300 आ गया 6A2 में। भाई अगर अब मैं यहां 8A में कितना आ रहा हूं, यहां अगर 6B में आपने 300 रुपए का ब्रेकअप कर दिया तो वहां भी 300 चला जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्होंने बोला भाई यहां पर तो आपको 250 लिखना है यहां पर, ठीक है। जो एक और बार 50 रुपए आ रहा है वो लिखना है आपको 6H में, ठीक है। इन सारों का टोटल आ जाएगा फिर से यहाँ पे 300। फिर आपको 7H में जो कि रिवर्सल करना है 50 रुपए का, क्योंकि आपने 3B में एक बार रिवर्सल किया है टेम्पररी में। यहां 7 में भी तो वही फिगर लिखता हूं जो रिवर्स करी होती है, ना कि जो करनी होती है। समझ रहे हैं यहां तक? सो ये 7H वाली फिगर यहां से आ गई।
ये 6B में 250 लिखते हैं, यहाँ 250 आ गई, डिफरेंस 0 पे। सो फॉर एवर अगर आपने साल के विद इन में कोई भी आईटीसी लेकर रिवर्स करके फिर रीअवेल किया है, ठीक है, इन दैट केस वो आईटीसी कहां दिखेगा? एक बार दिखेगा 6B, एक बार दिखेगा 6H, एक बार दिखेगा 7H। सेवन एच है अदर रिवर्सल्स, ठीक है जी, समझ आ गया सर? यहाँ कोई डाउट है? मैडम कोई डाउट किसी को? आपको कोई डाउट यहाँ तक बताइए सर, किसी को कोई डाउट बोलिए, चल सकते हैं आगे? सो कंफर्ट आ रहा है? अब क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पे 3 केस लिखूंगा, फिर आप मुझे समझाएंगे क्या करना है। अब जो अब तक पढ़ा है ना, यही इनपुट टैक्स क्रेडिट में चेंज है बस, लेकिन अब मैं कुछ 2-3 चीजें लिखने जा रहा हूँ, वो नोट करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, जो हमने 3B में रिवर्सल दोबारा क्लेम कर लिया, उसको फॉर्म 9 में क्या करेंगे? क्या रिक्लेम जो किया, कैसा रिवर्सल रीक्लेम कर लिया, यहाँ किया नहीं आपने? 3B में किया है। ये कहाँ करते हो? ये कहाँ है? 6B का 3B है ना, 3B की 3B को 6B में करेंगे ना डिफाइन। मैं क्या पूछ रहा हूँ मैम, ये कहाँ लिया आपने क्रेडिट? ये तो 3B में लिया ना, 3B में ले रहे हो ना? 3B यहाँ में रीक्लेम किया है इनपुट। यही किया ना, 50 रुपये यहाँ डाला है ना, यही तो किया। ठीक है, और कहाँ किया रिव्यू? इस महीने रिवर्स किया था, उस महीने रिव्यू किया 3B में। ये वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। मैंने नेक्स्ट महीने किया ना, अभी नेक्स्ट वाला आएगा। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी, आप अपना कोई केस तब तक जो ये वाला केस है, समझ आ गया? नेक्स्ट मैंने तो बोला कि मैं भी 3 केस लिखूंगा आपके सामने, मैं नेक्स्ट भी लिखूंगा, पिछला भी लिखूंगा, सारी चीज लिखूंगा, ये ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है? मुझे लिक्विड था ना, वो दे दो, परमानेंट ही लग गया वो। मुझे आपके सामने 3 चीजें लिखनी है पहले इंपॉर्टेंट, फिर मैं केसेस लिख रहा हूँ सारे। सर अभी तक हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर क्रेडिट्स कहाँ दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, बट अभी तक हमने एक चीज की फिगर्स की बात नहीं करी, दैट इज 8। फिर मुझे आपसे बात करनी है 8C, फिर मुझे आपसे बात करनी है 13। आज तक यही सॉर्ट नहीं हो पाया कि 8A में क्या दिख रहा है, 8C में क्या डालना है, 13 में क्या डालना है। ये कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो पाया। ध्यान से सुनिए, फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। 8A में क्या दिखेगा जरा सुन लीजिए। 8A में दिखेगा 24-25 का आईटीसी, जो 24-25 में दिख गया, ठीक है? 2A से 2A 2B 2B से सर मैं क्या लिख रहा हूँ आप वही समझेंगे इस बार। 8A इस बार खतरनाक फिगर है। वो आपने डेंजर वाला साइन देखा है जो ऐसे स्केलेटल से बना होता है, ऐसे हड्डियां बनी होती हैं, समझ गए ना? ये 8A वाली फिगर इस बार डेंजरस फिगर है। ये आपको लगता है 2A से आ रही है, आपको लगता है 2B से आ रही है, इस बार क्या आ रही है मैं वो लिखने जा रहा हूँ इस बार, और आगे से आगे क्या होगा पिछला भूल जाएंगे। ये 2B जो 24-25 का 24-25 में दिख गया, वो ध्यान से सुनिए, इसमें एक्सक्लूडेड है
जो 23-24 का 24-25 में दिखाया गया वो खुद ऑटोमेटिकली माइनस हो रहा है इस बार, ठीक है। उधर से उठा दो, मिट जाएगा। ठीक है, 23-24 का जो 24-25 में दिख रहा है वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, और जो किसी ने 24-25 को 25-26 में अप टू 30 नवंबर 2025 दिखाया है ना सर, ये खुद ऑलरेडी एडेड है। डेडली फिगर, डेंजरस, ये खुद ही कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट ये है कि मोबिलिटी कैसे रहा है। मतलब आपको 16/4 तक की 16/4 तक का भी लिमिट का सारा टोटल हो के आएगा। हाँ जी, खुद आएगा। अब इसमें ये जो डेंजरस साइन है ना वो इसके लिए नहीं था, अगर ये तो बच्चों वाली बात थी, ये तो हमें डर ही लगा। डरावनी बात ये है ऑनलाइन फिगर। इन्होंने कहा हम अब एक एक्सेल भी देंगे साथ में, जो कि हर साल देते हैं, लेकिन जो एक्सेल है ना सर, एक्सेल वर्सेस ऑनलाइन मैच नहीं करेगा, कि क्लियरली लिख दिया कि एक्सेल वर्सेस ऑनलाइन मैच नहीं करेगा। क्या मैच नहीं करेगा, ध्यान से सुनिए। एक्सेल वर्सेस ऑनलाइन में देयर विल बी 4 differences. There will be 4 differences which officer will be readily checking in your Excel. Officer Excel भी मंगाएगा वो आपसे, अपलोड करनी है सर, मंगाएगा जब बाद में परेशान करना होता है 2 साल 3 साल बाद। तो आज ही एक्सेल डाउनलोड करके वर्किंग कर लेंगे साइड बाय साइड। सर एक्सेल में कोई क्रेडिट जो रिवर्स चार्ज का था और सप्लायर ने दिखाया होगा ये भी दिखेगा, जिस पे याद है आपका सप्लायर टिक कर देता है आरसीएम, ये दिख रहा होगा। फोटो वगैरह के कोई जीटीए भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड, कोई ऐसी सप्लाई जो सामने वाले ने फॉरवर्ड चार्ज को एडिट करके आरसीएम कर दिया, ये भी दिखेगी। इसके एफसीएम भी आरसीएम। यस, कोई ऐसी सप्लाई जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू होगा, जो कि इनएलिजिबल होता है क्रेडिट, वो भी दिखेगा। ये एक्सेल में दिख रहा है सब कुछ, ऑनलाइन नहीं दिख रहा। कोई ऐसा क्रेडिट जो आपने, सामने वाले ने, ध्यान से सुनिए, 24-25 का था, उसकी डेट चेंज करके 25-26 कर दी, ये भी दिख रहा हो, ये भी एक्सेल में दिख रहा है, इसकी डेट चेंज कर दी। ये 4 क्रेडिट एक्सेल में दिखेंगे, ऑनलाइन नहीं दिखेंगे। लेकिन ऑनलाइन में एक ऐसी चीज दिखेगी जो एक्सेल में भी दिखेगी, जो एक्सेप्शनल है, वो है कोई क्रेडिट जो 25-26 का था और वेंडर ने चेंज करके उसकी डेट 24-25 कर, प्रीपोनमेंट ऑफ डेट। दिखेगा, ये दोनों में दिखेगा, ऑनलाइन एंड एक्सेल बोथ। ठीक है, 8C में इस बार सिर्फ 2 ही तरीके के क्रेडिट जाएंगे।
मैंडेटरी है, सिर्फ 2 ही तरीके के क्रेडिट 8C में जा सकते हैं। एक जो टोटली मिस हो गया, यानी कि नेवर गॉन थ्रू 3B। टू बी में था, आपने 3B में आज तक ऊपर ग्रॉस वाली फिगर में भी उसको नहीं डाला, मैन्युअली डिलीट कर दिया। यही फिगर सिर्फ 8C में जा सकती है। और दूसरी फिगर जो 8C में जा सकती है वो है ऐसा क्रेडिट 24-25 का जो काउंटर वेंडर ने डिस्क्लोज किया हो 25-26 में अप टू 30 नवंबर 2025। सर मेरे को एक बात बताओ, आप क्रेडिट 2B से लेते हो? अगर कोई क्रेडिट 31 मार्च 25 तक 2B में दिख ही नहीं रहा था, तो वो कभी 3B में गया होगा? नेवर थ्रू 3B हो गया। सामने वाले ने आगे जाके दिखाया है, तो इसका मतलब आपने आगे ही लिया होगा, तो वो वाला बन गया। तो ये वाला क्रेडिट 8C में जा सकते हैं बस। या तो जो सामने वाले ने आगे किया हो, इस वजह से आपने 3B में ना लिया हो, या आपने खुद भी कभी 3B से हटा दिया। और कोई भी क्रेडिट 8C में, ठीक है। 13 में क्या जाएगा आप सुन लीजिए। 13 में जाएगा 8C वाले तो जाएंगे ही जाएंगे, +2 और सिनेरियोज जाएंगे। 8C में अगर कुछ डाला है तो वो 13 में तो आएगा ही आएगा। 2 सिनेरियो और है। फर्स्ट, कोई RCM का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड किया, वो 8C में नहीं जाता। कोई RCM का क्रेडिट पे कर दिया लेकिन लिया अगले साल हो, वो 8C में नहीं जाता, क्योंकि वो 8A में नहीं आ रहा होता। मैंने देख बताया ना आपको कि वो जो सामने वाले ने RCM दिखाया वो एक्सेल में तो आ रहा है, 8A ऑनलाइन पे नहीं आ रहा है। तो 8C में दिखा के कैसे नेगेटिव बैलेंस ले आऊं? इट ओनली गोज टू 13। ऐसे ही 13 में दूसरी एक फिगर आती है जो मैंने आपको पीछे एक स्क्रीन पे दिखाया भी था, 8H1, यानी कि इंपोर्ट्स की फिगर। जो इंपोर्ट्स आपने ड्यूटी पे करी हो लेकिन उसको क्लेम अगले साल किया, वो भी यहाँ है। डन डन। थोड़ा सा क्लियर हुआ है सर? ये आज तक क्लियर नहीं था कि 8C 13 में क्या आता है। मैंने इसको बहुत सरल शब्दों में लिख दिया कि क्या आता है। ठीक है जी। अब आगे के 2 केसेस सुन लीजिए। ये मैं डाल सकता हूं? अब मैं टोटली आपके सामने 3 केस लिखूंगा इनपुट से रिलेटेड। पिछले फाइनेंशियल ईयर का इस साल में, पिछला मतलब पिछले में क्लेम किया, रिवर्स किया, इस साल रिक्लेम किया, इस साल रिवर्स रिक्लेम किया, या अगले साल रिक्लेम किया। 3 केस में। फर्स्ट केस, आपने 24-25 में, सॉरी 23-24 में ITC अवेल किया, 23-24 में ही रिवर्स किया, लेकिन उसको 24-25 में यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में रिक्लेम। ठीक है जी। सेकंड केस, आपने 24-25 में अवेल किया, 24-25 में ही रिवर्स किया, 24-25 में ही रिक्लेम किया। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको 2 बार समझाऊंगा, चीज रट जाएंगी, इसके बाद याद हो जाएगा। इसमें अभी मैंने आपको बोला था मैं रूल 37 नहीं पढ़ा रहा हूं सर। ये कोई भी नॉट एप्लीकेबल है, वो अलग से पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड केस,
24-25 में अवेल किया, 24-25 में रिवर्स किया, 25-26 में रिक्लेम किया। मैडम इसी में डाउट है आपका क्या? यही हो सकते हैं ना केस सर? पिछले साल, इस साल, इस साल, इस साल, इस साल, अगले साल, यही होता है। वो 50 रुपए का एग्जाम्पल याद है, वही याद कर लें। सर यहां पर क्या बनेगा? 23-24, ये तो जा चुका है, इस साल में डिस्कशन नहीं करेंगे। 24-25 6A यही सर। आप मुझे बताइए, जब आपने पिछले साल का आईटीसी इस साल में रिक्लेम किया होगा, इस साल की 3B में डाला होगा, वो एक ही बार आ रहा होगा, यस और नो? तो वो 50 रुपए यहां दिख रहा होगा। वो पिछले साल का आईटीसी इस साल में लिया है, उसके लिए स्पेसिफिक सेल है, इस बार यहां डालूंगा, 8A में आ नहीं होगा। यहां तक समझ आ गया? डन। नेक्स्ट, करंट ईयर वाला हमने पढ़ा, कैसे करेंगे? कैसे? 6A में क्या आ रहा था? 300 रुपए, याद है? वो 50 रुपए 2 बार जुड़ा हुआ था। 6A1 में कुछ डलेगा नहीं, 6A2 आ गया 300, 6B में मैंने आपको बोला था एक बार डालना 250, 6H में डालना 50, 7H में डालना 50, 8A में और 8B। 8B कहां से आ जाएगा? 250, 250, याद है ये? अब याद हो गया थोड़ा सा? अब नेक्स्ट ईयर का केस देखिए। इस साल में अवेल किया, इस साल में रिवर्स किया। मुझे बताइए वो 8A में कब दिख रहा होगा? इसी साल में दिख रहा होगा सर। मैं उसको आगे पुश कर रहा हूं क्योंकि मुझे सामान रिसीव नहीं हुआ है ना। 6A में वो 50 रुपए दिख रहा होगा सर। एक ही बार लिया, एक ही बार रिवर्स किया, अभी तक रिक्लेम तो किया नहीं। 6A1 में दिखेगा नहीं, 6D में 50 रुपए दिखाऊंगा, 6H में कुछ दिखाऊंगा नहीं, ठीक है जी। एक बार रिवर्स कर दिया, 7H में रिवर्स कर दूंगा, 3B में रिवर्सल हुआ है, यस और नो? ये दिखाते हैं यहाँ 8A में 50 आ रहा होगा, 8B में भी 50 आ जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगले साल की 25-26 से एनुअल रिटर्न अगले साल के एनुअल रिटर्न में आपने ये रीअवेल किया है, अगले साल ये रीअवेल किया है, तो एक बार 3B में आ रहा होगा, पिछले साल का इस साल में लिया है, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गया? अब मुझे लग रहा है कोई डाउट बचा इनपुट में तो बताओ जी सर। कोई डाउट? ये इस वाली इसी केस में जो है 24-25 में मेरे को तो दिखाना पड़ेगा, अगले साल अवेलेबल होगा इसको। मैं भी 8C13 लिखा नहीं सर, लिख देता हूँ अगर आपको लिख देता हूँ। सर आप एक्सप्लेन करोगे इसमें 8C में क्यों नहीं आएगा? मैंने कोई 8C13 लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूँ लिखता तो समझ लो। मैं भी 8C13 लिख देता हूँ, सालों में लिख देता हूँ।
पहले आप मुझे पॉइंट दे दो कि यहाँ तक समझ आ गया। ये भाई 24-25 में एक बार लिया, एक बार रिवर्स किया, ये लिया, ये रिवर्स किया, 7H में डालता है ना रिवर्स। ये दिख भी रहा होगा 8A में, इसलिए 6B में दिखाना पड़ेगा। यहाँ आ गया। अब आता हूँ 8C पे। इस साल का ITC जो अगले साल में लिया, मैंने आपको 8C में 2 फिगर लिखवाई थी, जो कभी भी 3B में ना गया। ये क्या एक बार भी 3B में नहीं गया? गया है। अगर आप इसको यहाँ नहीं लिखोगे तो 8C में लिखोगे ना भाई। अगर आप 8C में फिर लिख दोगे तो यहाँ -50 नहीं आ जाएगा क्या? मैंने आपको लिखवा चुका। क्या इस बार किया कुछ या पिछली बार किया? छोड़ दो जो पिछली बार हो गया, 23-24 क्लोज हो चुकी। यहां पर ही सिर्फ डाउट होना चाहिए था। मैंने आपको लिखवा दिया 8C में सिर्फ 2 ही फिगर आती हैं जो या तो 3B में कभी भी ना गया हो या सामने वाले ने उसको अगले साल दिखाया हो, इस वजह से आप ना ले पाए हो। लेकिन वो 8A में ऐड हो गया क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम तक दिखा दिया उसने। मैडम ये दोनों में से कोई भी केस है? अब समझ आया 8C में क्यों नहीं जा रहा? बताओ, कोई डाउट? क्लियर सर? डन है ना सर? इजी हो गया? बना लोगे सारे एनुअल टर्म? बोलो सर। यहाँ तो सारा समझ आ गया है, कुछ भी समझ नहीं आया। गोलमोल सा हो गया। क्या गोलमोल हो गया मुझे बताओ। थर्ड जो आप बोल रहे 8C में सर आप गोलमोल तब करो जब वो पढ़ नहीं रहे जो मैंने आपको लिखा है। एक बार पढ़ो 8C मैंने क्या लिखा है। मैंने क्या लिखा है 8C? मुझे पता नहीं है, डाउट आएगा इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया था। मैंने कहा सर 3B में एक बार भी वो क्रेडिट ना गया हो। ये 3B में गया नहीं गया? तो यहाँ आएगा 8C में। आप लिखना चाहो ना 8C में, मैं तो कह रहा हूँ लिखो। यहाँ 8C में लिख दो 50, ये -50 आ जाएगा। ढूंढते रह जाओगे जवाब का। क्योंकि भाई अगर आपका 6A में 50 आ रहा है तो आपको उसको नीचे तोड़ना तो पड़ेगा। कहां तोड़ोगे? ठीक है, तो 6A में जब भी आएगा जब 3B में लिया होगा ऑब्वियसली तभी आ रहे हैं। जो 25-26 में मैं एनुअल रिटर्न फाइल करूंगा, जब मैं वहाँ फिगर में 50 भी लूंगा 6A उसमें, तो तब कहाँ से बोलूँगा इससे सर कहाँ से मैंने लिया? सर मैंने तभी तो बोला 8C की लिंकिंग खत्म हो गई है। अच्छा, मैंने कहा तो भूल जाओ, अब एक्चुअल्स पे जाओ। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था भूल जाना वो चीज। तो वही देखते हो कि यहाँ पिछला दिखाओ। सर अब वो नहीं है चेंज हो ना गया। सर, हाँ? अब नहीं है सर। ये FAQ पे लिखा हुआ है, मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं है, सारा FAQ में लिखा हुआ है। सेम टू सेम चीज FAQ में लिखी है, उसमें एग्जांपल भी अटैच है। ठीक है, अब सिर्फ एक टेबल रह गया लिखना जो मैंने लिखा नहीं आपके सामने, दैट इज रिगार्डिंग 6M। 6M सर इस बार 6M में क्या जाएगा? 6M is any other ITC available but not specified above। इस बार 6M में वो फिगर लिखनी है आपको जो कि एक्सेस ITC है अवेल्ड but not reversed till date, यानी कि जिसके लिए आपको DRC 03 बनाना है, प्लस इसमें आप ITC 01, 02, 03 ये अमाउंट लिखेंगे। यानी कि अगर आपने लेट से 3B के अंदर 12 लाख रुपए ले लिया लेकिन लेना था सिर्फ 10 लाख, तो 6A में तो 12 लाख आ रहा होगा। अब आप 6A 1B भी नहीं लिख सकते, वो पिछले साल का भी नहीं है 2 लाख। वो 6B में तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि 8A में भी नहीं आ रहा होगा। 6H में भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो रिक्लेम थोड़ा ना हुआ है 2 लाख, लेकिन तोड़ना तो है उसको नीचे कहीं, तो उसको मैंने 6M में लिखा। ठीक है, कोई डाउट?
एक्सेस आईटीसी हमने नवंबर में पहले एनुअल रिटर्न से पहले रिवर्स कर वो दिया। टेबल नंबर 12 में आएगा, जाएगा 6M में ही, लेकिन 12 में क्योंकि 12 में आता है जो आपने अप टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रिवर्स कर दिया है टिल 30th में। ठीक है, एक चीज इससे पहले कि मैं ये सारा क्लोज करूं, एक चीज मैं आपको नोट कराना चाह रहा हूं। इस बार आपके एनुअल रिटर्न में एक डिफरेंस आएगा। एनुअल रिटर्न में 9C में टेबल 12 में, और वो आएगा 12B की वजह से, टेबल 12B की वजह से। सर ये एनुअल रिटर्न की गलती हो गई है उनसे, ये फिगर कैरी फॉरवर्ड गलत हो रही है उधर से। 9 में आप जो भी ऐसे सब भरेंगे, भरने के बाद जब आप 9C में जाएंगे तो आप देखेंगे 12 के अंदर डिफरेंस आ रहा होगा, और वो डिफरेंस आ भी सिर्फ 12B का ही रहा है। अब आपकी चॉइस है कि इस बार आप 12B में फिगर लिखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लिखेंगे तो डिफरेंस आएगा और डिफरेंस को नीचे एक्सप्लेन कर देंगे, दिस इज रिलेटेड टू ओपनिंग फिगर्स। या आप नहीं लिख रहे, आपकी चॉइस, दिस इज ऑल टुगेदर योर विश। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए। मुझे एक लास्ट चीज बतानी है, रूल 37। जी मैम। सर आप इसी में और सिनेरियो बताओगे या ये क्लोजर सो दैट मैम और कोई सिनेरियो है नहीं, बोलो ना। सर जो ये न्यू आपका ये जीएसटी रिटर्न आया था वो कभी भी आया था, पर जुलाई में उन्होंने एक बार हमें ऑप्शन दिया था कि अब तक का अगर आपने नहीं किया था 4A5 में दिखा के रिवर्स कर दो। आई थिंक जुलाई और अगस्त का 2024। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो नाउ आई हैव सर्टेन आईटीसी व्हिच एक्चुअली परटेन्स टू 20 year ended 23-24 which I have availed and reversed just to comply with that instruction. So that is coming in my currently coming in my table. 6A। हाँ जी, तो मुझे उसका आप बता सकते मैम एक ही बार 6B में जाएगा, वो आपके क्यों कौन सा हुआ वो क्रेडिट? वो आपका पहला केस बन गया। पिछले साल का आपको रिवर्स आपने किया ही लिया ही नहीं, नहीं, कुछ आपने नहीं पिछले किया। साल लिया भी नहीं, रिवर्स भी नहीं किया, Correct. तो फिर वो ये केस बन गया। But it pertains to my last year only. It pertains to my year. तो फिर ended. 6B में मत डालना उसको 6H और 6M में डाल देना, क्योंकि वो 6A में आ रहा है। Correct. एक बार रिक्लेम हो गया है 6H में, एक बार फिर बच गया उसका इफेक्ट, वो 6M में ले दो, क्योंकि वो 8A में नहीं आ रहा, नहीं। इसलिए 6B में मत लेके जाना। ठीक है, सर मेरा केस है रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग। जैसे 6A में हमारे पास फिगर आ रहा है DSTR 3B से, 3B में रिवर्स चार्ज में इंक्लूड है, उसको हम बाइफरकेट नीचे कर रहे हैं कि इनपुट है गुड सर्विसेज एंड रिवर्स चार्ज। ठीक है, यहाँ से फिगर उठ के हमारा 8B में जा रहा है, जबकि 8A में फिगर जो आ रहा है वो ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है DSTR 2B से। तो क्या इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा सर? कैसा डिफरेंस? जैसे 3B में रिवर्स चार्ज वाला फॉर एग्जांपल GTA का रिवर्स चार्ज है, भाई रिवर्स चार्ज नीचे नहीं आ रहा कैसे? नीचे डाल रहे हैं स्टिल उसके बावजूद भी उधर डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड मेरे भाई 6A में आपका क्रेडिट 80 रुपए फॉरवर्ड चार्ज आ रहा है, 20 रुपए रिवर्स चार्ज आ रहा है। ठीक है। 6A 100 रुपए बन गया। ठीक है, तो 6B में मैंने आपको बोला 80 रुपए डाल दो, नीचे क्या 6C और 6D नहीं है क्या सर जो रिवर्स चार्ज के लिए? वो तो वहाँ पे प्रॉपर्ली डिफाइन दिया हुआ है, लेकिन 8A में जो फिगर आ रहा है, अब 8A में कहाँ से रिवर्स चार्ज आ गया? नहीं 8A में रिवर्स चार्ज नहीं आ रहा, हाँ, और 8B में डिफाइन हो रहा है, रिवर्स चार्ज भी आ रहा है, कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा उसमें। सर 6B में तो 80 डाल रहे हो ना फॉरवर्ड चार्ज, अच्छा ठीक हो, 6B से उठ के 8B में 80 रुपए तो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। 6C में 20 रुपए कटेगा, 6D में 20 रुपए कटेगा, वो तो 8B में जा ही नहीं रहा। समझ गया। जी कोई क्वेश्चन? ये आवाज आ रही है, बंद कर दो आप, माइक बंद करो ना, कुछ आवाज आ रही है। हाँ। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आईटीसी से रिलेटेड है। पार्टनरशिप फर्म थी, मिड सितंबर 2024 को प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट हुई, उस पार्टनरशिप आईटीसी मैंने प्राइवेट लिमिटेड को कन्वर्ट करवाया। ITC 02 से जा रहा है। हाँ, लिखा ऊपर ITC 02। तो अच्छा 02 में उसको मैं 9 में कहाँ पे वो लिख दिया सर 6M तभी लिखा था मैंने, ITC 02 भी जाएगा उसमें। जी सर 6A1 में आपने बोला वो आईटी से आएगा जो लास्ट ईयर को pertain करता है, लेकिन अगर कोई ऐसा आईटीसी है जो लास्ट ईयर को परटेन करता है लेकिन मैंने 24-25 में उसको अवेल करके रिवर्स किया, तो वो नेट फिगर आएगी या ग्रॉस फिगर आएगी? हम ऊपर ग्रॉस आ रही होगी, 6A में भी आ रही होगी। यस।
तो उसको आपको 6A1 में लेना पड़ेगा और 6H में डालोगे फिर नीचे। तो आपको देखना पड़ेगा कैसे आपने उसको बैलेंसिंग की है। मैंने आपको फंडामेंटल बिल्ड कर दिया, अब आपने इसमें कोई गलती करी है, आगे पीछे किया है, तो वो तो यहाँ से पिकअप करनी पड़ेगी आपको फंडामेंटल्स। ठीक है, अब 37 का पढ़ा दो या कोई डाउट है इसमें? पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। नहीं सर, आपने बोला 6M में ले जाएंगे, फिगर जो मैंने उसका इनपुट तो ले लिया है, क्योंकि वो 6A में आ रहा है हाँ और 6M में आ गया, 8A में तो आ नहीं रहा। डाउट इफ बट कोई करें आगे? एनुअल रिटर्न की खासियत क्या है, आपने अभी पिछले 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं सर, आपको समय पता चला निकल गया? क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ रहे हैं हम। मैं फॉर्म ही दिखाता रहूँगा आपको तो आपको फॉर्म ही समझ नहीं आएगा। मुझे लगता है आप कल सुबह उठेंगे तो एनुअल रिटर्न पढ़ पाएंगे इजीली। अब आपको शायद याद हो गया हो, अगर जिसने नोट किया होगा अभी एक हो सकता है अभी ना समझ आ रहा हो, जब वो बनाने लगेगा ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये आपको एश्योरेंस दे। रूल 37 के बारे में सुन लीजिए सर। रूल 37A में सिर्फ एक एक्सेप्शन रखी, उसमें क्या उन्होंने बोला, इसमें 2 ही केस बनेंगे सर। एक तो जी जो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही अवेल हो गया हो, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही रिवर्स हो गया हो और करंट फाइनेंशियल ईयर में ही रीअवेल हो गया हो, एक ये केस बनेगा। एक केस बनेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में अवेल रिवर्स लेकिन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में रीअवेल। अब ये सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये नहीं कि अगला साल, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर इसमें कोई भी हो सकता है, क्योंकि 180 दिन वाले में क्या लिखा है, आप कभी भी किसी भी टाइम जिंदगी में 5 साल बाद भी उसको पे करोगे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एक्सेप्शन रखा हूं। इसमें क्या किया उन्होंने, इसमें तो सेम आपको 6B 6H 7H में डालना है, सेम जो अभी तक पढ़ा था। ठीक है, सेम डाल। अब इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाले में, इसने कहा जी इसको एक बार तो आपको 6B में डालना पड़ेगा, नीचे आप इसको 7H लिख दिया गलती से, सॉरी ये 7H नहीं इसका 7A है, 7A में डाल देंगे, खत्म हो गया। फिर इसके लिए स्पेसिफाइड रिवर्सल का सेल है, ठीक है, और इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 6A1 में नहीं दिखाएंगे, 6H में दिखाएंगे। इतना ही फर्क है, क्योंकि 6A1 कहता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और ये वाला इमीडिएटली भी हो सकता है और किसी सालों का भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक बैलेंस सेल रख दिया 6H, वो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब भी रीअवेल किया, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, डन है? क्या अब आप लोगों को कोई डाउट बचा है? 9 बाकी सारी GST और 9 सेम है आपका, और कोई भी डिफरेंस कुछ भी अंत नहीं बचा। अभी आपके 2 या 3 सेमिनार और हैं, मुझे नहीं पता कितने सर। किसी की 23-24 की सेल हमने 24-25 में क्लेम करी। सेल क्लेम अमेंडमेंट के लिए आपने दिखाई है, उसने दिखाई क्या? क्लेम का मतलब हमारी सेल है ना, आपने उसको डिस्क्लोज अगले साल किया, 3B में कब किया? 3B में जब मान लो अप्रैल में डिस्क्लोज किया था, अप्रैल 2000। करंट फाइनेंशियल ईयर की सेल को आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 और 3B दोनों में अगले साल दिखाया है, तो टेबल 10, 11, 14 में दिखाएंगे। 23 की 24 में किए तो करंट फाइनेंशियल ईयर के सब्सिक्वेंट में बात करें या प्रीवियस प्रीवियस करंट में आपने दिखाई है, और उसका 1 और 3B दोनों ही साल करंट ईयर में दिखाया है। डेट ऑफ इनवॉइस पिछले साल की रखी है अप टू स्पेसिफाइड टाइम में। यस, तो पिछले साल के एनुअल रिटर्न में आपने टेबल 4 में दिखाया, उसको 10, 11, 14 में दिखा दिया होगा, दिखा दिया। अब आप उसको इस साल के टेबल 4 में तो वो दिख नहीं रहा है, तो टेबल 9 में उसका पेबल कम कर दोगे, उतना ही पेबल कम कर दोगे, पेड एक्सेस दिख रहा होगा, वहाँ डिफरेंस आ जाएगा माइनस का, क्योंकि नया सेल ऐड हुआ है, इस बार नहीं करता।
ठीक है, बताइए कोई डाउट? बाय दैट टाइम अगर आपके पास इसके बाद भी कोई एनुअल रिटर्न में डाउट आता है, क्योंकि मुझे पता है अगर इससे ज़्यादा आप और एनुअल रिटर्न को पढ़ने लगेंगे तो आपका हैबिट हो जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लेंगे। Feel free to contact me anytime from 1st of December till 31st of December for GSTR 99C 24 hours anytime। क्योंकि उससे पहले क्या है कि मैं भी कुछ और सेमिनार्स में बिजी हूँ और तब तक आप भी बनाना शुरू कर रहे होंगे, तो इतना कोई डाउट आने नहीं चाहिए। सो इफ आफ्टर 1st of December you have any doubt you can call me 24 hours anytime। मतलब ये मजाक नहीं है, मैं सही मायने में कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऑफिस बैठ के लेट एनुअल रिटर्न भर रहे होंगे, हो सकता है कोई डाउट रात को 11 बजे आए। बट एक प्रॉपर डिस्क्लेमर यहाँ देख के जा रहा हूँ, आई डू नॉट सी व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप नहीं देख पाता, क्योंकि आप इमेजिन करो मेरी इम्पॉसिबिलिटी। अभी मैं सुबह 7 बजे उठ के पहले एक इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में था, सुबह से लेके मैं वहाँ से भाग के यहाँ पहुँचा। व्हाट्सएप नहीं मिस हो जाएगा सर आप। फिर मैं अभी यहाँ सेशन ले रहा हूँ, इसके बाद मुझे शादी में जाना है, ड्राइवर गाड़ी छोड़ गया अभी चाबी यहाँ पे, मैं आपको व्हाट्सएप नहीं देख पाऊंगा। आई प्रेफर कि आप मुझे एक मिस्ड कॉल मार देंगे, मैं आपको 100% फ्री होते ही कॉल करूँगा। मैं कोई भी मिस्ड कॉल नहीं छोड़ता, आपको कॉल बैक कर लूंगा और कॉल बैक करके आप मुझे व्हाट्सएप कराओगे, कोई बात नहीं, आप कहना आप व्हाट्सएप खोल लो, हम बात करते करते व्हाट्सएप खोल के पढ़ लेंगे। पर आपको मेरे को व्हाट्सएप भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एनुअल रिटर्न के सारे टेबल याद है। सो यू जस्ट बी स्पेसिफिक, आप मुझसे अपना डाउट पूछ लेना। मेरे को टेबल याद है, रात को 11, 12, 1, 2 बजे नींद में भी पूछेंगे, मुझे टेबल याद है, मैं सही जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं इसको JSON पे करता हूँ यूटिलिटी, ना मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज करता। ठीक है, सब कुछ एक्सेल यूटिलिटी यस बेस्ट रहता है, मैम ग्रिप रहती है उसको पूरी। कोई सॉफ्टवेयर यूज मत करना, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके लॉजिक्स को समझ ही नहीं पाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे बस इतनी सी बात कहूँगा, एनुअल रिटर्न वैसे ही भरना जो आपको 2 साल बाद खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि स्टाफ तो छोड़ के चला जाएगा ऑफिस, आपको तो याद आएगी नहीं एनुअल रिटर्न। तो इन दैट केस आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि 2 साल बाद जिस बंदे को याद करेंगे वो शायद हो सकता है फोन में ना उठाए। तो चैलेंज रिमेन्स विद यू ओनली, जैसी समझ आ रही है ना वैसे आप खुद बनाना। ठीक है जी। जैसे टेबल 8C में हम दिखाते हैं जो नेक्स्ट इनपुट हम क्लेम करेंगे, मान लो उसमें हमने गलत फिगर दिखा दी और इनपुट हमने जो क्लेम करा था वही कराया, 2-3 साल बाद मेरे को नोटिस आ गया कि एक्सेस आईडी से क्लेम करें, तो जस्टिफाई करो। तो 9 वो टेबल का रेफरेंस देंगे, ये देनी है अपनी गलती को थोड़ी दिखा दो उसको जाके, इस केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, बस उससे बात ही कर सकते हो टू सेटिस्फाई द ऑफिसर। तो लॉ में लिखा है टू सेटिस्फाई द ऑफिसर, जैसे GST 9 हम रिवाइज नहीं कर सकते, लॉ में लिखा है ना सर, रिफंड तब मिलेगा, नोटिस तब ड्रॉप होगा, नंबर तब कैंसिल होगा जब ऑफिसर सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन तो लिखी नहीं। जैसे GST में रिवाइज नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, तो उसको क्या हम ऐसा पेज ले सकते हैं कि हमें उतना ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं। हमें justification 9 का सिर्फ एक लॉजिक है जो मैंने आपको शुरू में बताने की कोशिश की। 9 का सिर्फ एक छोटा सा मात्र लॉजिक ये है कि जो बेनिफिट डिपार्टमेंट आपसे ले सकता है वो ले रहा है, आपको कोई पास ऑन नहीं करेगा। आईटीसी बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, डीआरसी बना सकते हो, सेल बढ़ा सकते हो, सेल घटा सकते हो, लेकिन सामने वाले को आईटीसी कम बढ़ेगा नहीं, तो नुकसान किसका हो रहा है? ठीक है भाई, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन and I could give some value add or a brainstormer for this GSTR 9। मेरी आदत सर PPT यूज करने की नहीं है शुरू से, ना मैं यूज कर पाता हूँ, चाहे उसमें एफर्ट मेरे ही ज्यादा हो रहा है सर। आप सोचो एक बार मैं ये बना के रख दूँ, मेरे लिए तो आसान है ना बटन दबाना, मैं एक चीज को हर बार रोज लिखता हूँ, तो मेरे लिए एफर्ट नहीं है। क्या इसीलिए सारे टेबल याद है नहीं सर, बात क्या होती है, इसको लिखकर आपको समझने में आपको ये लगता है कि यार सर क्या आज ये सारी टेबल ऐसे लिखी हो, तो आपको ना 8A भी दिख रही है, 6 सब भी दिख रहा है, मैं फ्लो बाय फ्लो लिख रहा हूँ, तो आपको समझ आ रही है कि इस फिगर के बाद इस फिगर के बाद कौन सी लिखनी थी। ठीक है, तो इन दैट केस आपको बेटर समझ आने की कोशिश की जाती है, बाकी तो आपकी सोच और चॉइस है।
ठीक है नवेद एक छोटा सा 9 से हटके क्वेश्चन है, बोलो ना। जो मेटल स्क्रैप पे कोई अक्टूबर 24 में कोई नोटिफिकेशन आई है TDS की, उसके बारे में थोड़ा सा क्या कि उसमें आपको उसको आरसीएम में जमा करना है? नहीं, वो TDS जो जमा करना GST का, सर अगर वो रजिस्टर्ड है, दोनों ही पार्टी रजिस्टर, मतलब इंडिविजुअल, हमारा क्लाइंट तो इंडिविजुअल है, आरसीएम लग रहा है, अनरजिस्टर्ड है तो टीडीएस लग रहा है। ये केस आया उसमें। अनरजिस्टर्ड है तो RCM। आप ना मेरे YouTube पे जाके देख लेना सर, वैसे तो मैं बोलता नहीं कभी है, मैंने उस पर डाली थी वो वीडियो, आप उसको डिटेल 20 मिनट की वीडियो, किस हेडिंग से मिलेगी वो? मेरा नाम ही से मैं ज़्यादा वीडियो डाल नहीं, अच्छा, लेटेस्ट ही वही होगी शायद, उसका डाल भी नहीं पाया। TDS GST इलेक्शन आ गए थे सर, TDS GST वाली। तो आप देखोगे आपको प्रॉपर डिटेल में सारी नोटिफिकेशन डिस्कस। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और, सुपर यूनिट में जो परचेज बिल को करना, नहीं तो 2.5 लाख एग्रीगेट होल ईयर का है, सिंगल इंडिविजुअल इनवाइस। सर इंडिविजुअल करके भी टोटल 2.5 से ऊपर पहुंच गया दोनों। अगर 1.5 है, एक 1.5 है तो दोनों एग्रीगेट ही हो गया फिर तो उसकी ईयरली। नहीं तो अगर पहला गेट छूट जाएगा। 1 लाख के 3 बिल हो गए तो तीनों पे काटना पड़ेगा सर जहाँ 2.5 क्रॉस करेगा उस पर कटेगा। मतलब उसके बाद सभी बिलों पे कटेगा, या जो भी 2.5 लाख ना सर सब पे कटना शुरू हो जाएगा उसके बाद, उस पार्टी से रिलेटेड। हम तो उसी पे कर रहे हैं जो 2.5 लाख से ऊपर वाला पे। मैं एक बार डिटेल में तभी कह रहा हूँ, उसको चेक कर लेना। सर इसमें एक चीज और, जैसे ये पहले तो खाली गवर्नमेंट एजेंसी पे था, तो गवर्नमेंट एजेंसी पे करेगी 2.5 लाख ही वो काटती थी TDS। तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है सर तो पर्सन टू पर्सन है ना, सब्जेक्टिव पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं पूरे साल में ये नहीं कह रहा हूँ किसी से भी कर रहे हो। इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने 2 लाख के 5 किए तब नहीं करते हैं ना सर पार्टी तो एक ही होगी, पार्टी के साथ थोड़ा ब्रेक कर लोगे। GST TDS जो सर आप चेक करना, मेरा वो व्यू पॉइंट वही है, नहीं तो फिर तो कभी भी नहीं लगेगा। आप नहीं, उसके अगर 2.5 लाख का 5 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी 2 लाख की फिर आप कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख तक करोगे क्यों ऊपर का, कोई भी नहीं करेगा। नहीं, गवर्नमेंट में तो सारे ऐसे ही होते जी 10 15 लाख के कॉन्ट्रैक्ट है, उनको तो लग ही गया। पार्ट पेमेंट हो रही है। वो आपकी ना, मतलब मेरा व्यू पॉइंट ये है कि मैं कंजर्वेटिव चलता हूँ। सारे ही काट लो। क्या है, उसको मिल ही जाना है क्या है? वो तो मिल जाना है। सर बात पता है यहाँ पर ये हो जाती है, नहीं काटा तो सामने वाले से तो मिलेगा नहीं बात। हमारे यहाँ GST में वन साइडेड गेम चलती है, 2 साल बाद कोई पता नहीं कौन है, वो पार्टी भी फोन नहीं उठा रही होगी आपका। सर अच्छा इसमें एक चीज और, जैसे अक्टूबर 24 से आया था और अभी तक अवेयर नहीं थे, नहीं काटा, तो पिछले क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? चुप रहना ही बेटर है सर, करंट में जो आ रहा है उस पर शांत रहना ही बेटर रहता है। सर GST TDS जो है, जो इंडिविजुअल इनवाइस के ऊपर नहीं है क्या 2.5 लाख रुपए? सर वहाँ पर भी 2.5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी है टोटल। पर जैसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो ना, स्लैब डीलर नहीं है। कर लो सर सेपरेट, आपकी चॉइस है, वो आप प्लानिंग कर रहे हो। आपने यहाँ पे लॉजिक समझने की चीज लिखता हूँ आपके सामने। सर एक चीज लिखता हूँ, सुनो एक चीज सुनो मेरी बात। GST ना 5 एलिमेंट से बना हुआ है सर। एक है लॉ, एक है पोर्टल, एक है एसएससी, एक है आप प्रोफेशनल, एक है डिपार्टमेंट। बनती किसी से नहीं। जो लॉ में लिखा है वो पोर्टल पे नहीं हो रहा, तो पोर्टल को लिखा है वो एसएससी को समझ नहीं आ रहा, जो एसएससी को समझ आ रहा है वो प्रोफेशनल को समझ नहीं आ रहा, प्रोफेशनल को समझ आ रहा है वो डिपार्टमेंट को समझ नहीं आ रहा, डिपार्टमेंट को जो समझ आ रहा है वो लॉ में नहीं लिखा। So all these 5 remains unreconciled, and only if they remain unreconciled it is a professional opportunity for you. If they all become reconciled, we have to go in the zone. वैल्यू खत्म हो गई। सर 8 साल हुए GST को है, 70 साल हो गए थे एक्साइज को है, 70 साल बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट बताता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। इसमें तो 8 ही साल हुए, 62 more years to go for litigation on what is supply। भाई आप जो करोगे वो डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, अपील में जाओ। इससे अच्छा है सर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कीचड़ बिचड़ वाले, स्क्रैप वाले, इसमें मैं कह रहा हूँ कंजर्वेटिव बस। एग्रेसिव होना है तो हो सकते हैं, ठीक है। आई होप मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम वेरी सून आपसे कभी मिल सकूं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। अनेबल टू टेक कॉल, कॉल बैक, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर गिविंग मी अ पेशेंट हियरिंग एंड नॉट बिकमिंग अ पेशेंट। थैंक यू सो मच। लेट हो रही शादी में।
हाँ सर, मैं गाजियाबाद जाना है गाड़ी चला के अभी। मैडम ने दिया ना वो पहुँच चुके हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। रेडिसन कौशाम्बी कोशाम्बी वही देख रहा था मैं, 1 घंटा 7 मिनट आ रहा था लगेगा बाहर में। बस हो गए क्या करूँ, ISPD वाले को घर की है नहीं, आ रहे 1 घंटा सर। थोड़ा सा हम आज कम अपॉर्चुनेट रहे नहीं सर, मैंने कंटेंट पूरा दिया है सर। कंटेंट पूरा, लेकिन अगर 1 घंटा और होता तो शायद हम कुछ और भी करते। कभी भी, अभी भी कर सकता हूँ, गाड़ी में जाते हुए बात कर सकता हूँ। चलिए, नव्या जी को एक फैमिली फंक्शन में निकलना है, सो थैंक यू नव्या जी। कंटेंट सर ने पूरे दिए हैं। जब कभी शॉर्ट टाइम में कंटेंट ज्यादा होते हैं, हमारे क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, फिर हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे आपसे एनी टाइम। मैं सोच रहा हूँ किसको बोला। विजेंद्र आप ही आओ ना वैसा। अगर हम सबको ऐसा फील हो रहा है कि हमें नव्या जी को एक बार और बुलाना है, तो बाद में आप ही से रिक्वेस्ट कर देते हैं नव्या जी, सेम टॉपिक पे दोबारा से सेशन। तब क्वेरी सेशन भी रख सकते हो आप, लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी बना के ले आए एनुअल रिटर्न और हम चेक डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, ये भी करो। तो एक सेशन हम दिसंबर 1 से 2 वीक में जब भी आप सब लोग चाहें हम नव्या जी के साथ दोबारा कर सकते हैं, या नव्या जी का जोन से लेकर बोलो। फिलहाल फॉर द टाइम भी हम फाइनल ब्रेक आज के लिए लेते हैं, डिनर करते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा ट्यूसडे को है। विनोद कौशिक जी को भी हमने 99C के लिए बुलाया है। वो सेशन 3 से 6 है। डिफरेंट स्पीकर, डिफरेंट अप्रोच, कुछ नया निकल के आता है, तो जरूर से आइएगा। और सेकंड सेशन है MC के ऊपर टॉपिक, एनुअल फाइलिंग में कुछ इश्यूज हैं, वो कह रहे थे इस बार MC पे, सेकंड टॉपिक MC के ऊपर है। सो थैंक यू आप सबको अटेंड करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं ले लूँगा सर, उधर आओ मैं ले चलिए लूँगा। आप बैठो, लंच डिनर करो।